منچریال میں کانگریس کے جلسے میں کئی نشستیں خالی دیکھی گئی۔ پارٹی کے قومی صدر کھرگے کی موجودگی میں بعض افراد جلسے گاہ سے جاتے ہوئے بھی نظر آئے۔ وزیر افزائش مویشیات تلسانی سرینواس یادو نے واضح کیا ہے کہ عوامی مسائل کو حل کرنے والی BRS کو ایک اور موقع دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS مسلسل غریبوں کے مفادات میں کام کر رہی ہے۔ وہ شامل اسمبلی حلقے کے منگل ہاٹ ڈویژن میں سابق کارپوریٹر پرمیشور سنگھ کی زیر صدارت منعقدہ BRS کے اجلاس میں وزیر موصوف نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلاح و بہبود اور ترقی کے معاملے میں تلنگانہ ملک کے لیے مثال بن گئی ہے۔ گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندراراجن نے شکایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹینک بنڈ کے قریب امبیڈکر کے بلند مجسمے کی نقاب کشائی کی کل منعقدہ تقریب میں انہیں مدعو نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں مدعو کیا جاتا تو وہ اس تقریب میں یقینی طور پر شرکت کرتی۔ انہوں نے کہا کہ خاتون گورنر کو تقریب میں شرکت کے لیے مدعو نہیں کیا گیا ہے، جو حیرت کی بات ہے۔ تارناکہ میں ICMR وگنان بھارتی کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ TSPSC پیپر لیک معاملے میں وزیر KT راما راؤ کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان سے استعفے کا BJP نے مطالبہ کیا۔ پارٹی نے ورنگل میں بے روزگاروں کے مارچ کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ وزیر موصوف کی وجہ سے 30 لاکھ نوجوان متاثر ہوئے ہیں۔ احتجاجیوں نے اس معاملے کی برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ نوجوانوں کو فی کس 1 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے۔ دہلی شراب معاملے میں وزیر اعلیٰ دہلی کیجریوال کو CBI کی نوٹس دی گئی ہے۔ مرکزی ایجنسی نے اس معاملے میں اتوار کو پوچھ تاچھ کے لیے حاضر ہونے کی کیجریوال کو ہدایت دی ہے۔ اس معاملے میں ایجنسی نے اب تک کئی افراد کو گرفتار کیا ہے۔ 24 فروری کو عام آدمی پارٹی کے لیڈر منیش سسودیا کو گرفتار کیا گیا تھا۔ سسودیا کے جیل میں ہونے کے دوران کیجریوال کو نوٹس سیاسی حلقوں میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے کہا ہے کہ ریاست میں تمام طبقات کے عوام کو فلاح و بہبود کے ثمرات پہنچانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے شہر حیدرآباد میں امبیڈکر کے بلند مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دلت بندھو اسکیم تلنگانہ کے لیے فخر کی بات ہے۔ وقار ضلع کے راپول گاؤں میں BRS کے رکن اسمبلی مہیش ریڈی سے مقامی مسائل پر دیہاتیوں نے سوالات کیے۔ اس موقع پر ان دیہاتیوں نے کہا کہ ان کے مسائل کئی دنوں سے زیر التوا ہیں، جن کو حل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر MLA کے حامیوں اور دیہاتیوں کے درمیان بحث و تکرار ہوئی اور دونوں MLA اور پولیس کی موجودگی میں ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ BRS کے رکن پارلیمنٹ کتا پربھاکر ریڈی نے سدھی پیٹ ضلع کے دوباک منڈل میں ژالہ باری سے فصلوں کو ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا۔ مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کرتے ہوئے کسانوں سے ملاقات کی اور ان میں بھروسہ پیدا کیا۔ حکومت کی طرف سے امداد فراہم کرنے کی بھی انہوں نے یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ فصلوں کو نقصانات کا جائزہ جلد لیا جائے گا۔ BRS لیڈر نیلم مدھو نے کہا ہے کہ دلتوں کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے کئی پروگرام متعارف کرنے کا سہرا وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے سر جاتا ہے۔ دلتوں کی زندگیوں میں دلت بندھو اسکیم کے ذریعے تبدیلی لائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں امبیڈکر کی 125 فیٹ اونچے مجسمے کی نقاب کشائی کے ذریعے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے امبیڈکر کے نظریات کو عام کرنے کا کام کیا ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے جنارم منڈل میں امبیڈکر جینتی کی تقریب منعقد کی گئی۔ قبل سے جنارم منڈل مستقر سے ریلی نکالی گئی۔ بعد ازاں امبیڈکر کے مجسمے کی نقاب کشائی بھی انجام دی گئی۔ جنگاؤں ضلع میں بین ریاستی چوروں نے ہلچل مچا دی، جنہوں نے کئی مکانات میں چوری کی وارداتیں انجام دی۔ کل رات چوری کی یہ وارداتیں پیش آئیں۔ مقامی افراد نے بتایا کہ کچھ عرصے سے چوروں کی یہ ٹولیاں مختلف علاقوں میں سرگرم ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں چوری کی وارداتوں میں بتدریج اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس سے دیہاتی خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چور مقفل مکانات کو نشانہ بنایا کرتے ہیں۔ CCTV کیمروں کو بھی چوروں کی جانب سے نقصان پہنچایا گیا۔
ताहम बाज़ CCTV कैमरों में उनकी नकल व हरकत कैद हो गई। पुलिस इस फुटेज की बुनियाद पर इनकी तलाश कर रही है। शुबा किया जा रहा है कि बिहार और मध्य प्रदेश से इस टोली का ताल्लुक है। वैखराबाद के नवाबुपेट में BC हॉस्टल में वार्डन की जानिब से तलबा की पिटाई की इत्तला मिली है। बताया जाता है कि ग़िज़ा की फराहमी की ख्वाहिश पर वार्डन ने बच्चों की बुरी तरह पिटाई कर दी। इन तलबा ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए शिकायत की कि बेहतर ग़िज़ा की फराहमी की ख्वाहिश पर बरहम वार्डन ने उनकी पिटाई कर दी। उन्होंने वार्डन की तब्दीली का मुतालबा किया। चलती बस में आग लग गई, ताहम इस वाक़े में किसी भी मुसाफिर के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। ये वाक़या ज़िला आनंदपुर के ताड़ी पत्री में पेश आया। इस खानगी ट्रैवल्स की बस का टायर अचानक फट पड़ा, जिसके नतीजे में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया और ये बस जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई। इस वाक़े के वक्त बस में 29 मुसाफिरीन सवार थे, ताहम ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आज सुबह की अवलीन सातों में बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 12 अफराद हलाक और दीगर कई अफराद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि जख्मियों में 25 की हालत नाजुक है। रायगढ़ जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट सोमनाथ खारगे ने बताया कि ये वाक़या मुंबई पुणे हाईवे पर बोरघाट में शंकर बाबा मंदिर के करीब उस वक्त पेश आया जब एक खानगी बस जिसमें तकरीबन 45 अफराद सवार थे गहरी खाई में गिर गई। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव के काम जारी हैं। जख्मियों का खोपोली के देही अस्पताल में इलाज जारी है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकामात के ये अफराद बस में सवार थे। पुलिस का कहना है कि अब तक कई मुसाफिरीन के खाई में फंसे होने का खदशा है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। साउथ जोन DCP साई चैतन्या मीर चौक पुलिस हदूद के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल गश्त करते देखे गए हैं। इफ्तार से कबल शाम के औकात में साउथ जोन DCP साई चैतन्या मीर चौक पुलिस हदूद के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए भवानी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस एहलकारों की जानिब से उनका इस्तकबाल किया। DCP को पैदल चलते देख राहगीरों में तजस्सुस पाया गया, ताहम उनके इस इक़दाम को अवाम में अपने तहफ़्फ़ुज़ और साउथ जोन में लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक़ एतमाद बहाल करना समझा जा रहा है। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक़्क़िद किए गए तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज 2023 के खुसूस में रियासती हज कमेटियों के लिए बज़रिए ऑनलाइन एक तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने अमले के साथ इस तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा की क़यादत में दिल्ली में आइन बचाओ हिंदुस्तान बचाओ रैली निकाली गई। दस्तूर ईद के मौका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर आइन बचाओ मिशन के तहत दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 6 से सुप्रीम कोर्ट तक एक मार्च निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा को पुलिस ने ये कहकर गिरफ्तार कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट के इलाके में रैली मुनाज़म करने की इजाज़त नहीं है। सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा समेत कई अफराद की भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। अबरार हुसैन आज़ाद और एडवोकेट मौलाना शफी मसूदी ने भी महमूद पराचा के हमरा नई दिल्ली में आइन बचाओ हिंदुस्तान बचाओ एहतजाजी रैली में शिरकत की। उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर में हलाक किए जाने वाले असद अहमद को इलाहाबाद के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम मोहम्मद को जुमेरात की दोपहर UPSTF ने एनकाउंटर में हलाक किया था। दोनों उमेश पॉल कत्ल केस में मतलूब थे। अतीक अहमद, जो कि पुलिस तहवील में है, अपने बेटे की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर सके और ना ही आखिरी दीदार कर सके। अतीक अहमद ने हालांकि अदालत में अपने बेटे की नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत आज होने वाली थी। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इलाहाबाद के कब्रिस्तान में असद अहमद की तदफीन की गई है। सिर्फ 35 रिश्तेदार बशमुल नाना और खालू को जनाजे में शिरकत की इजाज़त दी गई थी।
बीआरएसवी कायदीन ने मरकजी हुकूमत से सरकारी मुलाजिमतें देने का मुतालबा करते हुए काकतिया यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार की क़यादत में वरंगल में टीएसपीएससी पेपर लीक मामले के खिलाफ बेरोजगारी मार्च मुनक्किद किया गया था। क़ब्ल अज़ीं बीआरएसवी कायदीन ने मरकजी हुकूमत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत नौकरियां दिए बगैर बेरोजगारी मार्च मुनक्किद करने का कोई हक नहीं रखती है। उन्होंने इस मार्च को रोकने का इंतबाह देते हुए शदीद एहतजाज दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दी। तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नवमुंतखब चेयरमैन गेलू श्रीनिवास यादव ने आज अपना ओहदा संभाल लिया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस के स्टूडेंट विंग लीडर जी श्रीनिवास यादव को तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन का ओहदा सौंपा है। वो साल 2004 से पार्टी से जुड़े हुए हैं और तेलंगाना तहरीक का हिस्सा भी रह चुके हैं। साल 2012 से टीआरएसवी के सदर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सीएम केसीआर की जानिब से तकर्रुरनामा हासिल करने के बाद गेलू श्रीनिवास यादव की आज हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई। गुजरा तलसानी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, गंगूला कमलाकर व दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की और टीएसटीडीसी के चेयरमैन का ओहदा संभालने पर जी श्रीनिवास यादव को मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद के सरकारी अस्पताल में स्ट्रेचर की कमी के सबब मरीज को उसके रिश्तेदारों के घसीट कर लिफ्ट तक पहुंचाने और फिर डॉक्टर के पास ले जाने का वाकया सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया 31 मार्च को पेश आया है। अब इससे मुताल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। मरीजों ने स्ट्रेचर की कमी की शिकायत की है। वजीर सेहत हरीश राव ने इस वीडियो के वायरल होने पर तहकीकात का हुक्म दिया है। उन्होंने मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर के रमेश रेड्डी को तहकीकात करने और रिपोर्ट पेश करने को कहा है। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा ने इस वाक़े पर वजाहत पेश की है और कहा है कि अस्पताल पहुंचने वाला मरीज शराब के नशे में धुत था। मरीज की हालत की वजह से उसके लवाहिकीन ने उसे घसीटा था। ताहम अस्पताल अमले ने व्हील चेयर भी फराहम किया था, लेकिन वो उसे घसीट कर ही डॉक्टर के पास ले गए और इलाज के बाद मरीज को व्हील चेयर के जरिए ले जाया गया। इस वीडियो के मंजर आम पर आते ही अपोजिशन जमातों ने तेलंगाना हुकूमत और वजीर सेहत पर शदीद नुक्ताचीनियां की हैं। वैसा तेलंगाना पार्टी सदर वाईएस शर्मिला ने भी रद्दमल जाहिर करते हुए पूछा है कि क्या यही सेहतमंद तेलंगाना है। ये वीडियो तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की अक्कासी करता है। निजामाबाद अस्पताल की सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि मुकम्मल मालूमात के बगैर इस तरह की वीडियो बनाई गई है ताकि अवाम का सरकारी अस्पताल से भरोसा उठ जाए। उन्होंने कहा है कि निजामाबाद का अस्पताल तेलंगाना में एक खास पहचान रखता है और अस्पताल के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रमजानुल मुबारक के तीसरे दह के आगाज के साथ ही शहर की तमाम मसाजिद में फर्जंदान तौहीद खुशू व खुजू के साथ नमाज तहज्जुद अदा करते नजर आ रहे हैं। रमजानुल मुबारक के आखिरी दह में नमाज तरावी के साथ साथ क़यामुल लैल यानी तहज्जुद की नमाज भी शहर भर की मसाजिद में अदा की जा रही है। मुख्तलिफ मसाजिद में रूह परवर मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह पुराने शहर के इलाके फतेह दरवाजा में वाक़ वजीर अली मस्जिद से भी कुछ मनाजिर सामने आए हैं, जहां पर नमाज तहज्जुद अदा की जा रही है। सैकड़ों की तादाद में बूढ़े, बच्चे और नौजवान अहाता मस्जिद के अलावा मस्जिद के बाहर भी नमाज अदा करते देखे गए हैं। AIMIM मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हाथों 160 इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में आई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अपने हल्के मलकपेट के अंबरपेट और सैदाबाद डिवीजन के इस्तफादा कुनिंदगान को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स हवाले किए। 1,60,18,560 रुपये पर मुश्तमिल 160 चेक्स अवाम में तकसीम किए गए हैं। मलकपेट MLA के कैंप ऑफिस वाक़ पंजशाह में मुनक़्क़िद चेक्स की तकसीम प्रोग्राम में RI अंबरपेट मंडल श्रीकांत के अलावा सैदाबाद RI हरी बाबू, पार्टी के सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर ने भी हिस्सा लिया।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रान गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने आगापुरा इलाके में मुनक्किद दावत इफ्तार में शिरकत की। हल्का असम्बली नामपल्ली के आगापुरे में शानदार पैमाने पर दावत इफ्तार का नज़्म किया गया था। फ्लोर लीडर व एमएलए चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूस से शिरकत की और आवाम के साथ रोज़ा खोला। मुहिबान मजलिस की जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी का वालहाना इस्तकबाल करते हुए उन्हें तहनीत भी पेश की गई। हैदराबाद शहर के इलाके जगदीश मार्केट से एक 35 साल शख्स 4 अप्रैल से लापता हो गया है। तफसीलात के मुताबिक सैयद जहीर पुराने शहर के इलाके हाफिज बाबा नगर के साकिन हैं। वो 4 अप्रैल को एबिट्स गए थे, ताहम अब तक घर नहीं लौटे। उनकी अहलिया और वालदा ने सैयद जहीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट एबिट्स पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। बताया गया है कि गुमशुदा शख्स की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उनकी अहलिया और वालदा ने एबिट्स पुलिस से जहीर को ढूंढ निकालने की अपील की है। लापता शख्स नजर आने या कोई भी इतला मिलने पर फ़ोन नंबर 7569452094 या फिर 9000636117 पर रब्त करने की ख्वाहिश की गई है। हिंदुस्तान में एक दिन में कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए। 29 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलात के सबब मुल्क में एक बार फिर तशवीश पाई जाती है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,753 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इसी के साथ यौमिया मुस्बी शरह 6.78% रिकॉर्ड की गई है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज यानी जुमा को ये शरह 5.01 थी। कई रियासतों में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। महकमा सेहत ने मोहतात रहने का मशवरा दिया है। दरियासना मुल्क में कोरोना से 29 अमवात हुई हैं। सबसे ज्यादा 9 अमवात रियासत केरला में रिकॉर्ड की गई हैं और हलाकतों की कुल तादाद 5,31,091 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 53,720 तक जा पहुंची है। बताया गया है कि हिंदुस्तान में पाए जाने वाले कोरोना केसेस में ज्यादातर केसेस नए वेरिएंट XBB.1.16 के सामने आ रहे हैं। इस दौरान मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। 24 घंटों में 397 अफराद ने कोरोना टीका लगवाया है और मुल्क में अब तक 220,66,25,517 अफराद को कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।